Hi, I'm Dr. Smriti Ojha, and today I'll teach you about topical agents. This is the first part of my lecture on topical agent. So let's start. What are the topical agents? Topical agents are the compounds or preparations which are generally applied on skin. It is applied on body surface like skin or mucous membrane. So how they act? They mainly act by either by physical or mechanical manners. Obviously, they can also act by chemical means also. Topical agents are the drugs which are applied on various body surfaces and cavities for variety of actions, for variety of purposes or to treat diseases. They can also be applied on the body cavities which are open to the outer environment like oral cavity, vaginal cavity or colonic cavities where the mucous membrane or the skin is available to apply or available to the environment. Topical agents produce variety of actions and they act by either by adsorbent action or astringent action, demulcent action, emollient action, protective action and so on. I'll explain all these properties in the next slide. Many topical agents contain antimicrobial agents, so they also used to exhibit antimicrobial property. Now coming to the classification. As we are aware, topical agents are applied on skin. So I'm just briefing you about structure of skin. Skin is composed of these layers. First, the outermost layer is epidermis. Here you can see the epidermis, which is further divided into 5 parts: stratum corneum, stratum spongiosum, stratum germinatum. That's not required here. After epidermis, the second layer is dermis and followed by hypodermis and muscular layer. You can see जो ब्लड वेसल्स है हमारी बॉडी की ब्लड वेसल्स है वो डर्मिस से ओरिजिनेट हो रही है. ब्लड वेसल्स आर फाउंड इन डर्मिस ओनली. तो अगर आपकी कोई भी मेडिसिनल प्रिपरेशन हमारी एपिडर्मिस को क्रॉस करके डर्मिस तक आती है तो वी कैन से वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाती है. Otherwise, if we are applying topical agents on the surface of epidermis, it just provide a protective or local action on the surface. Along with the various layers, skin is also comprised of sebaceous glands, pores, hair follicles, which also participate in absorption of drugs. In sebaceous glands, sweat glands या hair follicle, hair shaft की जो pores होती है वहाँ के through भी drug का absorption proceed होता है. So it's just about the structure of skin in a brief. Coming to the next slide. This is classification of topical agents. On the basis of mechanism of action, like whether they act by physical means or the topical agents act by the chemical means, we can classify these agents. So the topical agents are classified by physical action. On the basis of their physical action are protective and adsorbents, demulcents, emollients and cleansing action. So one by one I am going to explain all these terms. The first is protectives and adsorbents. क्या होते हैं ये protectives? Which protects our skin from extraneous matter, harmful substances. How they protect? हमारी skin को protectives कैसे protect करेंगे? They form a thick layer on our skin. अगर हमारी स्किन के ऊपर कोई थिक लेयर बन जाती है, किसी भी केमिकल की थिक लेयर बन रही है, तो ऑब्वियसली कोई भी इरिटेंट है या हार्मफुल केमिकल है वो डायरेक्टली हमारी स्किन को कांटेक्ट नहीं करेगा एंड फाइनली हमारी स्किन वहां पे अफेक्टेड नहीं होगी, हार्मफुल इफेक्ट इजीली नहीं पहुंचेगा. प्रोटेक्टिव्स प्रोटेक्ट आवर स्किन बाय फॉर्मिंग अ थिक लेयर ऑन द स्किन. They protect our skin from sun rays like UV rays, from sunburn, from harmful irritants, other harmful substances. They can protect our skin. What adsorbent do? First, I want to explain you the term adsorbent. There is a term sorption or sorbents. Sorption is to absorb something. अपने अंदर चीजों को लेना, एब्जॉर्ब कर लेना, केमिकली और फिजिकली बाइंड कर लेना इज ऑप्शन. ये फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. वन इज एडजॉर्प्शन एंड द सेकेंड इज AB, absorption.
When we talk about adsorption, it is a surface phenomena. अगर सिर्फ सरफेस पर कोई सब्सटेंस एड्सॉर्ब हो रहा है, सरफेस पे ही एक्ट कर रहा है, फिजिकली एडहेयर हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड एड्सॉर्प्शन. अगर पूरा के पूरा बल्क 100% ऑफ द सब्सटेंस यहाँ पर इन्वॉल्व है, मींस सरफेस से लेकर के पूरे कोर तक अगर सब्सटेंस आपका एब्जॉर्ब हो रहा है, एडहेयर कर रहा है, देन वी कॉल इट एब्जॉर्प्शन. तो एब्जॉर्प्शन व्हाट इट डज, इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर ऑफ द स्किन. हमारी स्किन के ऊपर प्रेजेंट मॉइस्चर को, हमारी स्किन के ऊपर प्रेजेंट सीबम को, सलाइवा को एब्जॉर्ब कर लेता है. ये एब्जॉर्ब करने के बाद हमारी स्किन की मैकेनिकल फ्रिक्शन को डिक्रीज करता है और इरिटेशन इफेक्ट जो मिल रहा है वो डिक्रीज करता है. लाइक टिश्यू एक्सुडेट्स आ रहे हैं, वुंड के बाद पस फॉर्मेशन होता है, वो निकल रहा है. एड्सॉर्बेंस ये सारी चीजों को एड्सॉर्ब करते हैं एंड हमारी वुंड हीलिंग प्रोसेस स्पीड अप करते हैं. Examples of protective and adsorbent are talc. In our household, we can easily see talcum powder. This is the same talc. Calamine. It is pink in color, and you can easily find calamine in. One example is lactocalamine lotion, zinc oxide, and silicon polymers. These all are few examples of protective and adsorbent. Now, coming to the next class is demulcent. What demulcent does? Demulcent form a protective layer, but where it forms the protective layer on mucous membrane. देखो क्या डिफरेंस है प्रोटेक्टिव्स एंड एड्सॉर्बेंस में. डीमल्सेंट भी एक तरीके का प्रोटेक्टिव ही है, लेकिन ये हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन, जो हमारी ओरल म्यूकोसा है, ओरल कैविटी है, वहां पे प्रेजेंट म्यूकस मेम्ब्रेन पे जाकर के प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है और एक सूदिंग एक्शन दे रहा है, प्रोटेक्ट करता है. अगर अल्सर हो गया, हमारी मुंह में अल्सर हो गया, तो वी कैन यूज डीमल्सेंट. वो उस अल्सरेटिव एरिया पे जाकर के अपना एक लेयर बनाएगा, म्यूकस मेम्ब्रेन को कवर करके एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है. एंड फाइनली कुछ और इंजरीज, कुछ कोई और हार्मफुल सब्सटेंस वहां पे जाके अल्सर को बढ़ाता नहीं है, ये प्रोटेक्ट करता है. एंड अलोंग विद द प्रोटेक्टिव वी कैन ऐड मेडिसिनल प्रिपरेशंस, मेडिसिनल एजेंट्स अलोंग विद द प्रोटेक्टिव, जो एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाने के साथ साथ मेडिसिनल पर्पस भी परफॉर्म करे, सो दैट अल्सर हीलिंग हमारा स्पीड हो. एक तो ये है कि जो अल्सर है या कोई और कट है, बर्न है, कुछ और प्रॉब्लम है, वो बढ़े ना. हमने प्रोटेक्ट कर लिया तो फाइनल एब्रेशन से या फ्रिक्शन से और बढ़ेगा नहीं. सेकेंडली, अगर उसमें मेडिकामेंट भी प्रेजेंट है तो वी दैट मेडिसिनल एजेंट विल स्टार्ट अप इट्स ओन मैकेनिज्म फॉर हीलिंग प्रोसेस. The example of demulcent is pectin, glycerine, honey. ये कुछ examples है demulcent के. Coming to the next class is emollient. What is the mechanism of action of emollient? It traps moisture. ये मॉइस्चर को अपने अंदर ट्रैप कर लेता है. इट ट्रैप्स मॉइस्चर, और मॉइस्चर को अपने अंदर ट्रैप कर रहा है. तो मॉइस्चर ट्रीटमेंट प्रिपरेशन, जब ड्राई हो रही है हमारी स्किन में मॉइस्चर की कमी है, उस वक्त हम इमोलिएंट अप्लाई करते हैं. तो ऑब्वियसली ये एनवायरनमेंट के प्रेजेंट मॉइस्चर को ट्रैप करेगा और स्किन को ड्राइनेस से प्रिवेंट करता है. मॉइस्चर को ट्रैप कर रहा है, स्किन को ड्राई होने से प्रिवेंट कर रहा है. इट सूट्स एंड हाइड्रेट्स आवर स्किन. And where we can use it? We can use it for dry skin. We can use it for itchy or scaly skin. Itchy skin पे, scaly skin पे हम emollient को use करते हैं. Like eczema अगर हो गया है या psoriatic condition से, तो वहाँ पे हम emollient को use करते हैं. करता क्या है, moisture को absorb करके hydration को maintain कर रहा है, skin की hydration state को maintain कर रहा है. Then what are the examples of emollients written in this slide? It's petrolatum, lanolin, glycerine, mineral oil, lecithin. They all are example of emollients. The next and the last class for physical action is cleansing substances. We all are aware, like we used to clean our skin daily. अपनी स्किन को हम डेली साफ भी कर रहे हैं. किससे साफ कर रहे हैं? एक नॉर्मल डस्ट एंड डेब्रीज जो आ जाती है वहां पे क्लीन करते हैं. सेकेंडली, अगर वुंडेड स्किन है, चोट लग गई है, वुंड है, उस स्किन को क्लीन कर रहे हैं. तो ऑब्वियसली दोनों जगह क्लींजिंग एक्शन. एक तो सॉफ्ट सोप से हम एक डेली स्किन रूटीन जो फॉलो करते हैं वहां पे क्लीन कर सकते हैं. डस्ट दो तरीके के होंगे, एक वाटर सॉल्युबल डस्ट होगा, एक ऑयल सॉल्युबल डस्ट होगा. वाटर सॉल्युबल डस्ट तो इजिली हम वाटर से भी क्लीन करके रिमूव कर सकते हैं. बट इफ द डस्ट इज ऑयली, लाइक सीबम में चिपका हुआ डस्ट है, हमारी ऑयली सिक्रीशंस में चिपका हुआ डस्ट है, तो वहां पे वो सिंपल वाटर से क्लीन नहीं होने वाला है. दैट्स व्हाई वी कैन यूज अ सोपी सोल्यूशन, सोपी शैम्पूज और फेस वॉशेस लाइक कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस, जो हमारी ऑयली डस्ट को इजिली सीबम के साथ या ऑयली सिक्रीशंस के साथ क्लीन कर सके. सेकेंडली, अगर वुंडेड है, वुंडेड स्किन है, चोट लगी हुई है, वहां पे हम क्लीन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली
वी हैव सम मेडिकेटेड क्लिनजिंग एजेंट्स लाइक हम पोविडोन आयोडीन सोल्यूशन यूज करते हैं जो एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट भी दे रहा है और उससे भी क्लीन कर रहे हैं, तो स्पेशली हमारी बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो उस वुंड पे, क्योंकि ब्लड ओपन है, आपका इंटरनल स्किन लेयर्स ओपन है, वहां पे हीलिंग और स्पीड अप करना है, और जब तक हील नहीं होता है उस स्किन को फर्दर डैमेज से प्रिवेंट करना है। तो क्लिनजिंग एक्शन इज यूज्ड, क्लिनजिंग एजेंट्स आर यूज्ड फॉर क्लिनजिंग एक्शन एंड द एग्जांपल इज सॉफ्ट सोप। Coming to next slide, here we are classifying our topical agents on the basis of chemical means. The first class is astringent. Astringents are protein precipitates. They precipitates the protein. Astringent क्या करते हैं, ये हमारी प्रोटीन को स्किन पे जहां भी आप लगा रहे हो उसकी प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करने का काम करते हैं। अब नॉर्मली आप यूज कहाँ करते हो, लाइक छोटा सा कट लग गया, हमने शेविंग की, छोटा सा कट आ गया वहां पर, या किसी और तरीके की कोई छोटी मोटी चोट आ गई है, तो वी नॉर्मली अप्लाई द astringent। वो astringent ब्लड कैपिलरीज को श्रिंक करता है बाय प्रेसिपिटेटिंग द प्रोटीन्स। ब्लड कैपिलरीज जैसे ही श्रिंक होंगी, थोड़ा ड्राई और हार्ड हो जाएगा स्किन, एंड फाइनली आपकी ब्लड सर्कुलेशन वहां पर स्लो डाउन होगा, ब्लड क्लॉट हो जाता है, तो फर्दर ब्लड लॉस प्रिवेंटेड रहता है। एस्ट्रिंजेंट बेसिक उसका एक्शन तो यही है कि वो प्रोटीन को प्रेसिपिटेट कर रहा है, बट फर्दर ब्लड लॉस ना हो, जल्दी से हमारी हीलिंग स्टार्ट हो। जो ब्लड आपका कैपिलरीज कट हो गई थी जिसके कारण ब्लड बाहर जा रहा था, वहाँ पे क्लॉट जल्दी बने, क्योंकि श्रिंक होने के बाद जब नैरो हो जाएगा, आपका ओपनिंग ही नैरो हो जाएगा, तो ब्लड बाहर निकलना स्लो डाउन एंड फाइनली इट विल स्टॉप। ये आप एक्शन है एस्ट्रिंजेंट का। ये फर्दर ब्लड लॉस को प्रिवेंट करता है बाय श्रिंकेज ऑफ वेसल्स ड्यूरिंग स्किन वुंड। द एग्जांपल्स आर एल्यूमिनियम क्लोराइड, एलम, एलम का कॉमन नेम है फिटकरी, फॉर्मल्डिहाइड टॉपिकल एंड जिंक सल्फेट। Next class is irritants. Irritants are commonly called as counter irritants. क्यों हम इसे काउंटर इरिटेंट कहते हैं? बिकॉज इट काउंटर स्टिमुलेट्स एंड इट इज यूज टू ट्रीट पेन। होता क्या है, ये पेन को डायरेक्टली ट्रीट नहीं कर रहा है, बट जब हम काउंटर इरिटेंट अपनी पेन वाले एरिया पे लगाते हैं तो वहां पर इरिटेशन क्रिएट होता है, और उस इरिटेशन की वजह से वी डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम द फीलिंग ऑफ ओरिजिनल पेन। जो हमें एक्चुअली पेन और एक था, उस फीलिंग से हम कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज काउंटर इरिटेंट, एंड इट वर्क्स बाय काउंटर स्टिमुलेटिंग and distracting from the original pain. The next class example of counter irritants are capsaicin, menthol, camphor, even heat and cold therapy। जो हम कहते हैं ना चोट लगने पे गर्म और ठंडे आइस पैक्स लगाइए कोल्ड थेरेपी के लिए, या हॉट वाटर आप यूज करते हो फॉर हीट थेरेपी, दे ऑल आर काउंटर इरिटेंट्स। ऑब्वियसली हीट थेरेपी से कहीं ना कहीं हमारा ब्लड फ्लो भी बढ़ता है, तो वो हीलिंग में पार्टिसिपेट करेगा, बिकॉज ब्लड फ्लो बढ़ रहा है, ब्लड कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड टू हील, बट दे एक्ट एज काउंटर स्टिमुलेंट ऑल्सो। उस वक्त जो हॉट एंड कोल्ड थेरेपी है वो कहीं ना कहीं काउंटर इरिटेंट की तरह एक्ट करती है। द अदर एग्जांपल्स आर कैप्सिसिन, मेंथॉल एंड कैम्फर। द नेक्स्ट क्लास इज रूबीफेशिएंट. Rubefacients, they produces redness of skin. Why redness is produces? Because they dilates the capillaries and increases blood circulation. रूबीफेशिएंट जहां भी आप लगाओगे कैपिलरीज को डायलेट करते हैं, डायलेट होने पर कैपिलरीज वाइडन होंगी, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, और ब्लड ज्यादा अमाउंट में पहुंच रहा है, ज्यादा अमाउंट में सर्कुलेट हो रहा है, तो ऑब्वियसली वहां पर रेडनेस, स्किन में रेडनेस आती है, और ब्लड ज्यादा पहुंचने की वजह से वुंड हीलिंग प्रोसेस स्पीड अप होता है। वुंड हीलिंग आपका जो भी है, चोट लग रही है या हीलिंग प्रोसेस है, वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। एग्जाम्पल्स आर आइसोप्रोपेनॉल, सैलिसिलेट्स एंड निकोटिनामाइड्स. Next class is keratolytics. Keratolytics are the agents which are used to soften the keratin layer which is present on scalp or other areas. जो केराटिन की लेयर है वो जब सॉफ्ट होगी या लूजन, स्केल को लूज करेगी, तब हम आपके कुछ ट्रीट एक्ने को या डैंड्रफ को या डर्मेटाइटिस को ट्रीट कर सकते हैं। जो लेयर बन जाती है, केराटिन की लेयर बन जा रही है, उसको सॉफ्ट करना, लूज करना, फाइनली डिटैच करना, ये काम है केराटोलिटिक्स का। And the examples are salicylic acid, glycolic acid, lactic acid, coal tar topicals. The last class is caustics. The example is they are potassium hydroxide and silver nitrate. What they do, they destruct the tissues
जो टिश्यू है जहाँ पे भी हम इसको अप्लाई करेंगे उस टिश्यू को ये डैमेज कर देता है, डिस्ट्रक्ट कर देता है। ये पूरा का पूरा टिश्यू आपका सेलुलर मास को डैमेज और डिस्ट्रक्ट कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है। कब यूज करेंगे, क्यों यूज करेंगे फिर हम इसको? हम इसे इसलिए यूज करते हैं बाय लाइक हमारी आउटग्रोथ है स्किन पर, मूल है या वॉट है या हाइपर प्लास्टिक टिश्यू हो गया है, कभी होता नहीं छोटे छोटे से आपके वॉट निकल आते हैं, या स्किन की आउटग्रोथ हम लोगों ने देखी है, मोल फॉर्मेशन हो रहा है, वॉट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वहां पे अगर हम कॉस्टिक्स को लगाएंगे एक प्रॉपर फॉर्मुलेशन के फॉर्म में, तो ये स्किन को या उस टिश्यू को डिस्ट्रक्ट करेगा एंड फाइनली वो हमारी नॉर्मल हेल्दी टिश्यू को छोड़ करके मतलब उसको हम हटा सकते हैं, डिटैच कर सकते हैं। So this is all about the various classes of topical agents. Now it's question time. I have few questions which is related to the slides. All 5 slides I taught you. The first question is, what are topical agents? We are aware about the answer, but I have the answer in next subsequent slides. But just think about what may be the topical agents. Are the preparations which are applied on skin, or they are parenteral preparations, or they are used by the rectal. The second question is, what is Lugol's iodine solution? Actually, chemically Lugol iodine solution क्या है? Options are, is it a iodine or iodide, iodine salt, or aqueous solution of iodine? Third question is, name the compound which brings about protein precipitation. Options are astringent, B rubefacient, C they are both, or none of the above. The fourth is, topical agents. Name the class of topical agents which distract from actual pain. Again the options are astringent, B counter irritant, C both, D none. I think you must have thought about the answers. टॉपिकल एजेंट्स वो एजेंट्स है जो स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन पे अप्लाई होते हैं। ल्यूगोल सोल्यूशन एक्चुअली आयोडीन का एक एक्वस सोल्यूशन है। जो भी प्रिपरेशन, जो भी प्रोडक्ट या कंपाउंड प्रोटीन को प्रेसिपिटेट कर रहा है, स्किन प्रोटीन को प्रेसिपिटेट कर रहा है या इंटरनल बॉडी की प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करने की कैपेसिटी रख रहा है, दे आर कॉल्ड एज एस्ट्रिंजेंट्स। डिस्ट्रैक्शन ऑफ पेन, एक्चुअल पेन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए काउंटर इरिटेंट्स यूज होते हैं। एक्चुअल पेन है उसको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, आयोडेक्स एक एग्जांपल है काउंटर इरिटेंट का, तो एक्चुअल पेन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हम काउंटर इरिटेंट्स यूज करते हैं। तो मोर क्वेश्चंस आर, द टॉपिकल एजेंट्स व्हिच इज यूज्ड टू ट्रीट मोल और वॉट। मोल या वॉट को डिसॉल्व करने के लिए, ट्रीट करने के लिए, उन टिश्यूज को रिमूव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? ऑप्शंस आर देयर कॉस्टिक्स और एसिड्स और गिग्नार्ड रिएजेंट और टॉलरेंस रिएजेंट। Sixth is, topical agents which is used for wound healing by increasing blood flow to the affected area. जो वो topical agents जो blood flow को बढ़ाएं for wound healing process. They are called, options are first caustics or rubefacients or vasodilators or none of the above. Again, I have the option in next slide, but I am just want to explain you. कॉस्टिक्स यूज होते हैं मोल को या वॉट को या अनवांटेड टिश्यू ग्रोथ को डिसॉल्व करने के लिए, उसको प्रॉपरली डिस्ट्रॉय करने के लिए। इनफैक्ट टिश्यू वहां से हट जाता है, सेल लाइनिंग किल हो जाती है, दे विल नॉट सर्वाइव फर्दर। और ब्लड फ्लो इंक्रीज करने वाले टॉपिकल एजेंट्स होते हैं रूबीफेशिएंट। रूबीफेशिएंट को हम लगाएंगे तो उस एरिया का ब्लड फ्लो बढ़ता है और रेडनेस भी आती है, उस एरिया में रेडनेस भी आती है। तो आंसर टॉपिकल एजेंट्स, या इसको तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया कि स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन पे अप्लाई करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस स्किन डिसऑर्डर्स और स्किन कंडीशंस। Lugol solution is aqueous iodine solution. Protein precipitants are called astringents. जो हमें नॉर्मल पेन को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दे आर काउंटर इरिटेंट्स। जो मोल को, वॉट को या कोई भी टिश्यू को डैमेज करने की टेंडेंसी रख रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रख रहे हैं, दे आर कॉस्टिक एजेंट्स। एंड जो ब्लड फ्लो बढ़ाते हैं, रेडनेस क्रिएट करते हैं स्किन के ऊपर, दे आर रूबीफेशिएंट। सो ऑल अबाउट टुडेज क्लास, I'll tell you next part of topical agent in part 2. Till then, just revise your lecture. All the best for your preparation and future.